faster, longer, 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 longer. Sweat, drip, floor slick, clock ticks, I don't quit. Bar bends, back screams, I stay inside the lift. Pedal spin like a storm, track blinds, blood transform. Pain writes on my skin, I was made to perform. Load, I don't break, I reload. Hear the grind in my bones, watch me carry this load. Oh, oh, oh. Beast mode, in the dark I glow. Every limit I hold, I erase, I explode. Oh, oh, oh. Push again, push again, run to the edge, run to the end, rise above, rise, transcend. Go, 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 go. Don't stop, do 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 do. Don't stop, do 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 do. Don't stop, do 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 do. Don't drop up to the top. Can't slow down, can't stop. Road under my feet, iron on my spine. Every rep, every mile, etches undefeated in my mind. Tunnel focus, razor calm, chaos buzzing in my palms. World face to a hum, I become the storm I want. This is a burn I chose. Fire in my lungs, it grows. Every can I overdose. Ooh, turn that fear to fuel then dose. Beast mode, I don't break, I reload. Hear the grind in my bones, watch me carry this load. Don't, 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 Beast mode, I don't break, I reload. Hear the grind in my bones, watch me carry this load. Beast mode, in the dark I glow. Every limit I hold, I erase, I explode. Stronger every single day, harder carving out the way. Faster, heart like a grenade. Longer, I was built to stay. Left foot, right foot, breathe in, breathe out. Steel up, head high, every second counts. No retreat, no reverse, only forward through the hurt. One more set, one more mile, one more weight, one more trial, turn it up, turn to breathe it, rise. Eyes ahead, claim the prize, and the mind is rise. Hands up, hands in, lock in, let's go. Hard drum thunder in the glow. This is war with every doubt. Beast mode on lights out. Beast mode, I don't break, I reload. Hear the grind in my bones, watch me carry this load. Beast mode, in the dark I glow. Every limit I hold, I erase, I explode. Unstoppable, unshakable, unbreakable, unmovable. Stronger every breath I take, harder every step I make. Faster through the fear I run, longer I'm the loaded gun. Wake up again. Load up again. On.
Hi. Hello, coaches. How are you? Again, the camera is weak. ये तो सबसे पहले कितने लोगों ने अपने एड्स रन करने में काम किया है, प्रैक्टिस किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन प्रैक्टिस? कितने लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड तो हमें पता चले। जस्ट रेज योर डिजिटल हैंड एकता। और आपके जितने भी सवाल हैं, सवाल भी पूछ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। हम वो सारे क्लियर करेंगे एंड देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस एकता। अम, सर मैंने रन किया एड। हम्म। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, आपको शायद याद हो या नहीं। हम्म। अ, एक तो ये प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उसमें सेलेक्ट किया था डेमोग्राफिक्स में कि जेंडर फीमेल ओनली। ओके। बट मुझे 100% जो मैसेजेस आए, जो फोन नंबर्स आए, वो मेल के थे। हंड्रेड ओके। परसेंट ठीक है। आई आई रिसीव्ड अराउंड 50 मैसेजेस। एक भी काम का नहीं था। ओके। ईमेल, फोन नंबर और मैंने वो लिया था, क्या बोलते हैं, फोन नंबर और फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया था। एंड मैंने कैलेंडर का लिंक भी डाल दिया था उसमें। ओके। ठीक है, तो 80-90% तो लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। जिन लोगों को मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देम फ्रॉम माय अच्छा, व्हाट्सएप, हम मैंने देन। आपको शायद बताया था कि जो आपकी एड ग्राफिक्स है, एड ग्राफिक्स के अंदर भी आप मेंशन करिए कि ओनली फॉर फीमेल। तो आपने रिप्लाई किया था कि हाँ, आपने एड ग्राफिक पे भी मेंशन किया है, राइट? वहां भी किया था। उसके बाद मैं व्हाट्सएप से रिप्लाई नहीं करना चाहती थी। मैंने हम्म। इसलिए फेसबुक मैसेंजर पे भी उनका मैसेज आता है, आप जब ऐड डालते हो, राइट? तो जब वो ओके। उनका रिप्लाई, तो मैंने वहां पे पहले सोचा कि आई कम्युनिकेट विद देम देयर कि ये वैलिड क्लाइंट है कि ऐसी टाइम पास है। तो सर लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 95% लोग सिर्फ टाइम पास के लिए मैसेज किया था। उसके लिए अ, टारगेटिंग में फिल्टर डालना पड़ता है। और जब ऐसा लगे तो ऑडियंस को थोड़ा एक दो बार और ऑप्टिमाइज करो, मतलब कैंपेन को बंद करके दोबारा चालू करो सिर्फ फीमेल में। ओके। तो वो लर्निंग फेज से निकल जाएगा, तो फिर वो राइट ऑडियंस में चला जाएगा। ओके। ठीक है, मैं वो ट्राई करती हूँ, फिर नई हाँ, कैंपेन डालती बिल्कुल। हूँ। एक एक और प्रॉब्लम ये हुआ इस बीच में कि मैं काफी अपने इंस्टा पे काफी एड्स डाल रही थी। नॉट हम्म। एड्स, इंस्टा पे काफी रील्स और ये सब डाल रही थी, और वहीं से मैंने फेसबुक भी इंटीग्रेट कर दिया था, तो दोनों प्लेटफॉर्म पे जा रहा था वो। अ, ओके। अब मुझे दो एक वीक पहले कुछ मैसेज आया कि फेसबुक ने मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इट्स रिस्ट्रिक्टेड नाउ, नॉट अकाउंट, द मेरा जो फेसबुक पेज है, बिकॉज some Facebook policy has been violated। ओके। तो आज मैं उनके साथ आधे घंटे, एक तो उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दे डिड नॉट शो मी किस रील के कारण, किस मैसेज के कारण, किस पोस्ट के कारण उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। आज हाफ एन आवर का मेरा उनसे वेबएक्स पे था। उन्होंने बोला है कि, फिर उन्होंने आइडेंटिटी वेरीफाई करके बोला है कि 48 आवर्स में वो बताएंगे क्या है। बट आई डोंट नो, इट इज नॉर्मल कि रिस्ट्रिक्ट ऐसे हो जाता है। आप सिर्फ एड अकाउंट्स में एड रन करते वक्त जो चैलेंजेस आए हैं, आप वो आप बताएं मेरे को एकता। अच्छा। हाँ, तो ये एड अकाउंट का तो मेन चैलेंज यही है कि हाँ, तो उसके लिए कोई भी। स्टेप वन ये करो कि जो भी ऐसा लगे कि आपने ऐड रन किया है और वो जो मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं, तो ऐड को हम्म। पॉज करो, ऐड को वापस रन करो सिर्फ फीमेल में। हाईलाइट करो, और हेडलाइन है, हेडलाइन में भी मेंशन करो इट्स ओनली फॉर वुमेन। ठीक है? एक दो बार हम्म। जब ऐसे ऐड को बंद करके वापस से करोगे तो मेटा को समझ में आ जाएगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से फिर वो सिर्फ फीमेल को दिखाना शुरू करेंगे। हम भी जब ऐड रन करते हैं तो वो फिर हम्म। मेल फीमेल में दिखा देता है। इट्स बिकॉज कि एल्गोरिदम जो है, तो वो बिहेवियर को फॉलो करता है, जेंडर को फॉलो नहीं करता है कई बार। तो वो बिहेवियर, फिर सिमिलर बिहेवियर के लोग आने लगते हैं। तो जब आप इसको बंद करके स्टार्ट करोगे तो वो ठीक होने लगेगा आपका। ठीक है? ठीक है। वो चीज़ कर इसमें देना। एक एक हम्म। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैं वेट करूँ ना, जब रिस्ट्रिक्टेड हट जाएगा तब मैं ऐड डालूंगी उसमें, तो अननेसेसरी, बिकॉज नया ऐड रिस्ट्रिक्ट अकाउंट बनाओ और उससे स्टार्ट करो। ऐड बिजनेस मैनेजर में आप नया बना सकते हो। पेज नया बना दो।
कंप्लीटली प्रोफाइल, पेज। जो आपका, सॉरी नॉट प्रोफाइल, एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर का एक ऑप्शन होता है, तो वो आप हाँ। नया बना सकते हो एड मैनेजर। ओके, बट द रिस्ट्रिक्टेड इज माय माय पेज इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर मैं अकाउंट भी नया बनाऊंगी एड मैनेजर में, तो भी अगर मेरा पेज रिस्ट्रिक्टेड है आप लिंक तो सबको मैन्युअली भेजते थे क्या मैसेज में? नहीं। तो फिर एक बार उनसे सपोर्ट करके समझना, और साइड बाय साइड एक न्यू पेज भी बना के रख लेना। न्यू पेज, हाँ मुझे हाँ, वही क्योंकि लगा। कब वो ठीक है। वो रिजॉल्व होगा वो पता नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है, आई क्रिएट अ न्यू पेज। थैंक यू सर। बिल्कुल। यस चारू जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। So I messaged you about on the while I was creating an ad. मैंने दो एड्स रन किए थे। तो हम्म। पहला वाले में मुझे, जब मैं वो फॉर्म फिल कर रही थी, मुझे वो इंस्टेंट फॉर्म कैटेगरी नहीं मिली थी। एंड जैसे मैंने आपका ट्यूटोरियल भी देखा था, तो उसमें इंस्टेंट फॉर्म के बाद आपका एक कैटेगरी आ जाता है क्रिएट फॉर्म्स। ओके। तो मुझे वो स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा था, क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी किया उसी का एड का अगेन, उसमें हम्म। मुझे इंस्टेंट फॉर्म की कैटेगरी आ गई फिर से, पर मुझे क्रिएट फॉर्म की कैटेगरी नहीं आई। उसके लिए ना आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड्स का लेना पड़ेगा। तो मैंने लीड्स का ही लिया, मैंने लीड्स का ही लिया सर उसमें। लीड लोगे तो उसके बाद फिर कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड्स लेवल पे नीचे दिखेगा वो, क्रिएट अ फॉर्म करके। सर मैंने ट्राई तो सारा किया था, बट अभी भी नहीं दिख रहा, मुझे एरर आ रहा है उसमें। और पर हालांकि वो मेरा एड रन हुआ है। एंड उसमें जो सेकंड जो मैंने कॉपी बनाया था उसमें मेरी रीच अच्छी रही, बट अगेन सर उसमें लीड जनरेशन नहीं थी। ये चीज हुई आपको मतलब। जो आपका पूरा जो पेज है ना एडसेट लेवल का, हम्म। एड्स लेवल का, उसका हम्म। मुझे भेजना आप स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भेज दियो, ठीक हाँ, है। उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देना, क्योंकि वो नीचे ही ऑप्शन होता है, राइट, क्रिएट अ फॉर्म, या इंस्टेंट फॉर्म के नीचे क्रिएट का फॉर्म जी का जी ऑप्शन होता है, तो वहां से ही आप तुरंत कर पाओगे। जी सर, ठीक मुझे है। वो ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मैं आपसे स्क्रीनशॉट पक्का उसका डेफिनेटली आई हाँ, शेयर। आप एंड स्क्रीनशॉट सर, शेयर करिएगा मेरे को। जी श्योर। हम्म। एंड सर दूसरी चीज मुझे ये आ रहा था कि मेरा ना इसमें प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम लिंक नहीं हो रहा है फेसबुक के साथ। अब हम्म। मैंने दो तीन बार ट्राई किया तो उनका बार बार यही एरर मैसेज आता था, ट्राई अगेन लेटर, बट आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स एंड नॉट ऑन द सेम डे, मतलब फॉलो अप डे पे भी मैंने किया है, बट वो लिंक नहीं कर पा रही हूँ। तो एड्स, फिर मुझे मैसेज ये आया कि एड्स दोनों प्लेटफॉर्म पे रन होंगे, बट जो आपका लीड जनरेशन होगा या फिर जो भी आपके जो लैंडिंग पेज होगा वो आपका सिर्फ फेसबुक का ही पेज होगा। इंस्टा से आपको कुछ मतलब मैसेजेस वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे, आपके फेसबुक मैसेंजर पे ही आएगा जो भी आएगा आपको कनेक्ट जो करेगा। क्योंकि आपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं किया होगा बैकएंड में। मैम सर वो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है कनेक्ट, मुझे ऑप्शन ही नहीं। एक बार आप ठीक से चेक करिएगा, वो ऑप्शन होता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, अटैच अकाउंट में, ये कनेक्ट। कैसे करना है, क्योंकि मुझे उसमें लिंक नहीं मिल रहा है इंस्टाग्राम का, मेरे को वहां पे नहीं था। नहीं, फेसबुक पेज में से जाके करिए वो चीज़ आप। हाँ जी, फेसबुक पेज से ही कर रही हूँ सर। फेसबुक फिर मुझे था कि इंस्टाग्राम से भी देखती हूँ कि वहां से मैंने परमिशन ग्रांटेड है या नहीं है किसी अकाउंट को लिंक करने के लिए, तो मैंने वो सब ग्रांट कर रखा है दोनों पे, बट नहीं आ रहा, मेरे को ऑप्शन ही नहीं आ रही सर फेसबुक पे वो पेज पे। ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स भेजे हैं, वो आप फॉलो हम्म। कर लेना, हो जाएगा। ठीक है सर, आई ठीक है। फॉलो। ठीक है, ठीक है। ठीक है थैंक सर, यू। लेट यू नो, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, और किसी बंधु को कोई सवाल है अभी? नहीं है तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो जैसे लास्ट दो सेशन में हमने ये सीखा कि ऐड किस तरीके से रन होगा, राइट। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैलेंडली लिंक बना के, और कैलेंडली लिंक और जूम को कनेक्ट करके आप जो आपकी जो भी लीड्स आ रही हैं, राइट, उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मैनेज कर सकते हो इसका मतलब कि आपके जितने भी स्लॉट है, अगर दिन में मान लो कि आपके पास 4 से 5 मीटिंग है, तो हर किसी को आप मैन्युअली टाइम नहीं दे सकते।
ठीक है। यहाँ पे हिमांशु है, दिनेश है, कृष्णा है, तो अगर मेरे को सबको अलग अलग, मेरा 4 स्लॉट है, तो फिर सबसे कंफर्म करना पड़ेगा। तो वो फिर कहेगा नहीं मेरा 2 बजे रखो, तो मेरे को फिर वो मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि मैंने अवेलेबल टाइम दे दिया और सबको लिंक दे दिया, जिसको जो अवेलेबल टाइम मिल रहा है वो उसके टाइम से शेड्यूल कर ले मीटिंग, तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा ना। और उसे मैं इंस्टाग्राम में भी रख सकता हूँ, अपना जो पेमेंट पेज है उसके साथ भी अटैच कर सकता हूँ, ताकि पहले कोई पेमेंट करें फिर वो लिंक पे जाकर के मीटिंग शेड्यूल करा सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 एप्लीकेशंस लगते हैं। एक जो एप्लीकेशन आपको लगता है वो कैलेंडली लगता है, और दूसरा जूम इंटीग्रेशन। अब जो कैलेंडली आप यूज करोगे इसके साथ, तो कैलेंडली क्या करेगा, जो भी टाइम स्लॉट पे आपके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहा है सुष्मिता, शोमा, तो उससे क्या होगा, वो कि जो भी टाइम स्लॉट वहां पे रखे हैं अर्जुन, वही टाइम स्लॉट की जूम लिंक अपने आप जूम अकाउंट में क्रिएट हो जाएगी। और आपको बस जो है वो सेशंस लेना है उस पे। अगर आप फ्री यूज कर रहे हो कैलेंडली तो उसको एक बार जाएगी, बट अगर पेड कैलेंडली यूज कर रहे हो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज समथिंग। बट वो रिमाइंडर भी भेजेगा, और एसएमएस भी जाएंगे, और जूम लिंक भी जाएगी। ठीक है उनको, तो आपको अलग से वो बहुत सारे रिमाइंडर नहीं देने पड़ेंगे, एक सिस्टमेटिक भी लगेगा। आपको सिर्फ कॉल करने हैं और व्हाट्सएप पे उनको जो है लिंक भेजना है। ठीक है, राइट। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटेड कैसे करना है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे पास जो कैलेंडली अकाउंट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आपको सबसे पहले चीज़ ये करनी है कि कैलेंडली अकाउंट सेटअप करना है। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो ये स्क्रीन दिख रही है, तो ये कैलेंडली का टूल है। आपको यहाँ पे जाना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री में। फ्री में जाने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, और जो भी बेसिक डिटेल वो पूछ रहे हैं वो डिटेल्स देनी है, और सारा स्किप करना है। ठीक है, स्किप करना है, स्किप करके आपको डैशबोर्ड तक चले जाना है। जैसे ही आप इसको डन करोगे पूरा चीज़, ठीक है, तो उसके बाद ओके, ओके, जस्ट मुझे पासवर्ड एक बार चेक कर लेने दीजिए। राइट, और बैकएंड में जो भी जूम आप कनेक्ट करना चाहते हो चारू, वो आपको ओपन करके रखना है। राइट, तो इससे क्या होगा कि जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में उसको इजी रहेगा। जैसे ही आप पूरा अकाउंट सारा सेटअप कर लोगे ना, वो आपको पूरा इस तरीके से यहाँ पे एक डैशबोर्ड लेके आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा वन ऑन वन मीट। ठीक है, तो आपका जो पूरा डैशबोर्ड जो है वो इस तरीके से मिलेगा। जैसे ही आपका पूरा एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाए, तो उस सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल में आना है, और प्रोफाइल में जाके सारी चीज़ें हैं वो एक एक सेटअप कर लेनी है। अपना कवर फोटो है वो लगा देना है, अपना नाम लगा देना है, एक मैसेज बाय डिफॉल्ट है उसको रख सकते हैं, फिर लैंग्वेज फिक्स कर लेनी है यहाँ पे, फिर डेट एंड जो फॉर्मेट है
वो चेंज कर लेनी है। और सबसे पहले यहाँ पे ये जो कंट्री दिख रही है, कंट्री और टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कर लेना है अगर कोई बाहर की कंट्री का टाइम जोन दिख रहा है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन सिलेक्ट करना है। फिर ब्रांडिंग के हिसाब से भी अगर कोई आपको लोगो वगैरह लगाना है तो इमेज भी साइज दी हुई है यहाँ पे। लिंक में यहाँ पे आप अपना नाम लगा सकते हो, तो जब भी आप लिंक क्रिएट करोगे तो calendly.com, आपका नाम और उसके बाद जो 1-on-1 सेशन रहेंगे 40 मिनट्स या 30 मिनट्स, उसका लिंक यहाँ पे दिखेगा। ठीक है हरपाल जी। फिर उसके बाद ये सारा जो है वो बेसिक नॉर्मल है, इसकी कोई इतनी नीड नहीं है। लॉगिन लॉगिन प्रेफरेंस जो है आप रख सकते हो आईडी पासवर्ड के हिसाब से। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हो। ये सारा सेटअप करने के बाद आपको आना है, बैक कर लेना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आना है इंटीग्रेशंस, जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस दी गई हैं कि इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पहला है जूम, ठीक है, फिर गूगल मीट है, एंड गूगल कैलेंडर है। तो यहाँ पे मैंने गूगल कैलेंडर मेरा कनेक्ट करके रखा है, जो भी गूगल कैलेंडर मेरे मोबाइल डिवाइस में ईमेल एड्रेस है उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट करके रखा है। तो इससे क्या होगा कि जब भी गूगल कैलेंडर में या कैलेंडली में कोई मीटिंग मेरी स्केड्यूल हो रही है तो मुझे गूगल कैलेंडर के थ्रू नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। जैसे गूगल में आता है ना नोटिफिकेशन कि आपको कोई भी मीटिंग है तो 30 मिनट्स प्रायर या 50 मिनट्स प्रायर जो है वो आपके मीटिंग्स जो है वो आते रहेंगे उस पे। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी वो इससे आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है आपको कर लेना है, यहाँ से कनेक्ट करके सिंपल है। यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी ईमेल एड्रेस से आपको कनेक्ट करना है उसको बैकएंड में लॉगिन रखना है और सिंपल कनेक्ट कैलेंडर कर लेना है, तो वो अपने आप कैलेंडर जो है वो कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर वापस से आते हैं, और इम्पोर्टेंटली आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको जूम कनेक्ट करना है। अब जूम कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक कनेक्टेड है, मैं इसको हटा देता हूँ। एंड इसको अगर मैं देखूंगा यहाँ पे जूम इंफॉर्मेशन, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। इंटीग्रेशन ऐप में जाना है, कनेक्ट जूम कर लेना है। तो जो भी जूम आपने बैकएंड में लॉगिन करके रखा है वो जूम यहाँ पे आपको दिखेगा और उससे आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी एंड सिंपल चीज़ें हैं। जब आप जूम को इसके साथ कनेक्ट करते हो तो जो ऑटोमेशन होता है, कैलेंडली में कोई टाइम शेड्यूल करता है, राइट, वो टाइम शेड्यूल उसके साथ जो मीटिंग शेड्यूल करनी है वो मीटिंग शेड्यूल करने में आपके लिए आसान रहती है। उसके लिए आपको जो इजी वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपके लिए सिंपल और क्लियर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जब भी कभी इवेंट क्रिएट करते हो या ऑटोमेशन क्रिएट करते हो तो आपको हर बार जो है वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको वन टाइम कनेक्ट करके रख ले तो वो हर बार यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इवेंट टाइप में आप वापस जा करके चेक करते हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है जूम, तो ये लास्ट में दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे मेरा जो जूम लॉगिन है वो कनेक्ट हो गया है अपने आप, मैंने जस्ट कनेक्ट किया है उसके साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये मेरा बैकएंड में जो है teamysr01@gmail.com, तो वो सेम यहाँ पे कनेक्ट हो गया। पहले अगर आपने देखा होगा तो यूनाइटेड सुकुमार वाला था। ठीक है, तो अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब वापस से जाना है मुझे, क्रिएट पे जाना है या फिर स्केड्यूल पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट वाले के ऊपर। अब क्रिएट में देखो कितने ऑप्शंस हैं, क्रिएट में मल्टीपल ऑप्शन है कि 1-on-1 है, ग्रुप में है, और राउंड रॉबिन है। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को 1-on-1 चाहिए, तो आई गो विद दिस 1-on-1 सेटअप। अब 1-on-1 वाले सेटअप में मुझे क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले मुझे इसका नाम देना है, टेस्ट फॉर मास्टर कोच। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मेरी जो भी मीटिंग हो रही है शिल्पा वो कितने ड्यूरेशन की होगी दिनेश। जैसे अब मुझे यहाँ पे मीटिंग करनी है तो मेरी जो मीटिंग यूजुअली रहती है वो 40 मिनट्स की मैं रखता हूँ। ठीक है, या फिर आप इसे 45 मिनट्स की कर लीजिए, ताकि 45 मिनट्स की जब आप मीटिंग रखोगे तो 15 मिनट आपको ब्रेक का रहेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरी मीटिंग कोई भी 2 बजे शुरू हो रही है तो 2 बजे मीटिंग रहेगी, 15 मिनट ब्रेक रहेगा, नेक्स्ट मीटिंग मेरी 3 बजे स्टार्ट होगी। तो ये मैंने 45 मिनट्स कर लिया। यहाँ पे लोकेशन मैंने सिलेक्ट नहीं करा। लोकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे
कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मीटिंग स्केड्यूल हो रहा है वो हो नवल, राइट। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि एक मैं जो है गूगल मीट सिलेक्ट कर सकता हूँ, वेबएक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ, गो टू मीट सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट जूम इजी रहता है पवित्र, तो मैं जूम यूज़ करूंगा क्योंकि हर किसी के पास आज की डेट में जूम होता है, मोस्टली जो अटेंड करने वाला क्राउड है मयूरी। ठीक है, तो मैंने जूम यूज़ करा। इसमें हालांकि मल्टीपल ऑप्शंस भी आप दे सकते हो कि आप क्लाइंट को डिसाइड करने के लिए ये दो कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करे कि उसको कहाँ पे मीट करनी है, बट वो फिर हमारे लिए अलग अलग हो जाएगा कि हमें कभी जूम पे स्विच करना है, कभी गूगल मीट पे स्विच करना है। तो इससे वैसे एक ही ऑप्शन रखो और एक ही जगह से सारे मीटिंग कंडक्ट करके रख लो, राइट। फिर ये मैंने जूम सिलेक्ट कर दिया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इवेंट जो है मेरा उसका नाम दिया, ड्यूरेशन मैंने सेट किया कि कितने ड्यूरेशन तक वो मीटिंग मेरी जो है वो चलेगी डोली। ठीक है विजय। फिर उसके बाद मैंने अवेलेबिलिटी मुझे बतानी है कि मैं कब कब अवेलेबल हूँ मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है इनवाइटी कैन शेड्यूल 60 डेज इनटू द फ्यूचर। तो मतलब वो आने वाले 2 महीने के अंदर वो मीटिंग जो है वो मेरे साथ शेड्यूल कर सकता है शिवांगी। बट क्या मुझे वो याद रहेगा? अगर कोई आज से 45 दिन बाद, 15 दिन बाद भी अगर कोई मीटिंग शेड्यूल कर देगा तो इट विल बी हार्ड फॉर मी टू रिमेम्बर। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे जो है यहाँ पे 5 डेज ही चाहिए, कि 5 डेज की कैलेंडर साइकिल है उसी में जो मीटिंग है मेरी वो चलती रहनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। और उसमें विद इन अ डेट रेंज भी है, बट वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम जो भी एड रन करेंगे वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा, तो हम 5 डेज के साइकिल में करते रहेंगे रन। मतलब अगर आज 11 तारीख है तो मेरा नेक्स्ट 5 डेज कौन से होंगे, 12, 13, 14, 15 और 16, ये नेक्स्ट 5 डेज रहेंगे। तो जैसे अब कल कोई विजिट करेगा तो उसके लिए 17th भी ओपन हो जाएगा, अगर कोई 13th को ओपन करेगा तो उसके लिए 18th भी ओपन हो जाएगा। तो एक एक दिन उसके लिए ऐड होते रहेगा और 5 डेज जो है वो रोलिंग में चलते रहेंगे। ठीक है, अगर आज कोई देखेगा तो उसको आने वाले 5 डेज दिखेंगे उसके अंदर। फिर उसमें कहता है कि नेक्स्ट एटलीस्ट 4 आवर प्रायर नोटिस पीरियड। तो मुझे नोटिस पीरियड कितने चाहिए, एटलीस्ट 24 आवर्स चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि मेरे अभी कोई मीटिंग शेड्यूल कर दे रहा है और मेरे को फिर वो दिक्कत हो रही है और मैं कहीं बाहर गया हूँ और 4 घंटे में मुझे भाग के अपने सेटअप पे आना पड़ता है। एटलीस्ट 24 घंटे से पहले और आने वाले 5 दिन के बाद कोई मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कितना ड्यूरेशन रहा उनके पास, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, ये 4 दिन ही उनके पास जो भी स्लॉट है वो दिखेगा। पहला दिन है, पहले जो 24 घंटे हैं आने वाले वो ब्लॉक रहेंगे ताकि मैं अपना टाइम स्लॉट जो है वो मैनेज कर सकूं। क्लियर है सुष्मिता, मधुलिका, पवित्र जी, शिखा, क्लियर है? राइट। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है, राइट, उसमें हमें क्या करना है, हमें हमारे मीटिंग स्लॉट्स बताने हैं कि हमारे जो मीटिंग स्लॉट है तो हम कौन से ड्यूरेशन में जो मीटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे इसे एडिट कर लेते हैं एंड ये अभी जो है वो मंथ वाइज कैलेंडर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे लिस्ट वाइज कर लेते हैं कि लिस्ट वाइज हम कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके हिस्से में अगर पूरा ये जो ब्लैंक दिखेगा ऐसा, तो ये ब्लैंक ऐसा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा हटा देते हैं पहले। लेट्स रिमूव दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड करना है इसको। तो सबसे पहले कि जो भी टाइम पे हम अवेलेबल है, हम मॉर्निंग में नहीं अवेलेबल है। मैं सुबह जो भी मीटिंग्स होती है मेरी दोपहर के 2 बजे से मैं प्रेफर करता हूँ, 2 बजे के बाद से। तो यहाँ पे मैंने 2 बजे का टाइम दे दिया एएम की जगह पे पीएम, तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैंने 45 मिनट्स रखा है तो यहाँ पे आई की 45 मिनट्स, सॉरी नॉट हियर, 2 एंड यहाँ पे 45। ठीक है, तो ये मैंने मैन्युअली यहाँ पे टाइम स्लॉट दिया है। नेक्स्ट मीटिंग जो मेरी होगी वो 3 बजे हो जाएगी, और ये जो है ये सही है। इसके बाद एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एंड हियर आल डू 00, राइट। तो अब ये जितनी भी मेरी मीटिंग्स होंगी सारी भी, राइट,
तो ये सारी मीटिंग्स जो है वो ऐसे चलेगी 45 मिनट्स के हिसाब से। 15 मिनट का इसमें ब्रेक रहेगा, और इस ब्रेक में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी 45 मिनट से ज़्यादा मीटिंग चल रही है तो वो नेक्स्ट मीटिंग मेरी हैम्पर ना हो उसमें भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। और जो 15 मिनट है अगर मुझे उसको कोई नोट्स बनाने में यूज़ करना हो, या फिर कुछ भी अपडेट करना हो, तो उस अपडेट के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। राइट। तो उसके अलावा मुझे कोई एडिशनल कहीं पे ब्रेक चाहिए या कोई पॉइंट आउट बनाने हैं तो उसके लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल मेरा जो मीटिंग का ड्यूरेशन रहेगा वो 1 आवर रहेगा। 1 आवर की साइकिल रहेगी। 2 बजे के बाद 3 बजे मेरी नई मीटिंग शुरू होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चलेंगे। 4 एंड यहाँ पे 4:45। ठीक है, तो 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे ये मीटिंग मेरी चलती रहेगी। तो ये मैंने 3 स्लॉट दे दिया। अगर मुझे लग रहा है कि मैं इवनिंग में भी एक ले सकता हूँ मीटिंग, तो आई कीप हियर 8 PM एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं 8:45। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने संडे को जो स्लॉट बनाया है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मंडे को मैं नहीं करना चाहता हूँ। या फिर कोई और दिन है जहाँ पे मैं इसको रिस्केड्यूल करके संडे नहीं करना चाहता हूँ, तो संडे का मैंने यहाँ से हटा दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी मेरे जो स्लॉट्स थे वो सारे स्लॉट पे मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। और अगर कुछ भी मेरे को चेंजेस लग रहे हैं तो मैंने इस पे कर दिए हैं ये सारे चेंजेस। अगर मेरे मल्टीपल इवेंट सेटअप बनाए हैं कि मेरे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, एक वन ऑन वन भी चल रहा है और एक मेरा कोई पर्सनल और भी चल रहा है, तो आप 2 इवेंट बना सकते हो। बट अभी आपके वन ऑन वन चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो इवेंट होगा वो एक ही होगा। ठीक है। तो ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे टाइम स्लॉट दिए हैं यहाँ पे कि मेरे इतने इतने दिन में मीटिंग्स होंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार सैटरडे को मुझे जो है नून आवर्स के कोई भी स्लॉट नहीं लेने हैं, सिर्फ एक ही लूंगा। तो मैंने ये सैटरडे का सिर्फ एक ही रख लिया और इसे अप्लाई टू वन इवेंट कर दिया। राइट। तो ये आ गया मेरा इसमें। एंड इसे मैं ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ऑन रहे। लेट्स कीप दिस ऑफ। ठीक है। तो ये टाइम स्लॉट मेरे सारे आ गए यहाँ पे। अगर बीच में कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो मैन्युअली जा करके। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये मेरा जो मंथली स्लॉट है, राइट, इसमें आने वाले फ्यूचर में 25 और 26 को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप यहाँ पे आए, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसके जो जो भी स्लॉट है उसको हटा दें और अप्लाई कर दें। तो ये जो 25-26 आने वाली 25-26 है उसमें आपकी कोई भी मीटिंग स्लॉट नहीं होगी। बट एक बार अगर आपकी इवेंट शेड्यूल होती है तो फिर वो मीटिंग आपको करनी चाहिए। आप अपने एंड से रिस्केड्यूल नहीं कर सकते हो, हालांकि इसमें ऑप्शन है, बट इट नॉट लुक प्रोफेशनल क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे एंड से टाइम स्लॉट दिया है। ठीक है। देन इतना हो गया। तो सबसे पहले नाम दे दिया, टाइम स्लॉट दे दिया, ड्यूरेशन भी बता दिया मैंने, यहाँ पे टाइम स्लॉट भी दे दिए। अब आते हैं मोर सेटिंग्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन क्या देना होता है कि जब भी कोई हमारे साथ मीटिंग शेड्यूल करने आ रहा है तो उसको क्या क्या पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। मेरे पास कुछ बने बनाए हैं, तो जो आप चाहो तो वो एज इट इज यूज कर सकते हो। वो ऐसे, जैसे कि इसको हटाओ, कि यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन डाल दिए हैं कि एक ही मीटिंग बुक करो एक टाइम पे, मल्टीपल नहीं करनी है। ठीक है। ज्वाइन 10 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट टाइम। यूज ईयरफोन फॉर बेटर वॉइस क्लैरिटी। स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन आए, क्योंकि हार्डली हम उसको 30 या 45 मिनट्स ही दे रहे हैं और उसमें भी उसका इंटरनेट जा रहा है, ये हो रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, मीटिंग जो है वो स्पॉइल हो सकती है। राइट। देन मेक श्योर यू आर सिटिंग इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट एंड हैव अ नोटपैड एंड पेन। तो अगर कुछ नोट करना हो तो ये इंस्ट्रक्शन डाल दीजिए। ये मीटिंग में भी उनका जो ईमेल जाएगा, फर्स्ट ईमेल, तो ये इंस्ट्रक्शन उसमें भी जाएगा। राइट। उसके बाद जो लिमिट एंड बफर टाइमिंग है वो मैंने मैन्युअली ही आपसे करवा दी है, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है। तो जो 15 मिनट्स मैंने कैलकुलेट करके डलवाए हैं वो इसलिए डलवाए हैं ताकि आप यहाँ पे ऑटोमेट नहीं, वहाँ पे खुद से डाल दो ताकि आपको कैलकुलेशन क्लियर रहे। ठीक है।
तो ये सारा फिर हो गया। मीटिंग बफर नहीं चाहिए, फ्री बिजी रूल नहीं चाहिए। बुकिंग पेज ऑप्शंस में आइए, और यहाँ पे हमने जो मीटिंग ड्यूरेशन दिया है वो 45 मिनट्स का दिया है। तो सिलेक्ट दिस 45 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है उसको सिलेक्ट करें। और यहाँ पे अगर कुछ नेमिंग में चेंज करनी है तो कर सकते हैं, बिकॉज ये यूआरएल में जाएगा। आपकी जो यूआरएल दिखेगी ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, वो उसमें चेंजेस होगा, तो यहाँ पे उसको रखें। अब आते हैं उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म, कि अब कुछ डिटेल्स तो चाहिए होगी ना हमें उनसे, कि क्या क्या डिटेल हमें लेनी है। तो जैसे यहाँ पे है, नेम एंड ईमेल हम ले रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद प्लीज शेयर एनीथिंग दैट विल हेल्प टू प्रिपेयर फॉर दिस मीटिंग। तो अगर हमें चाहिए कि ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्क करो और उसको मल्टीपल लाइन में दे दो। और कुछ नया क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पे करो। अगर आपको चाहिए कि व्हाट्सअप नंबर आपके पास नहीं आया है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप उनसे कनेक्ट करो व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि नंबर है, ठीक है। इतना कर लो, और उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है ऊपर ले जाओ, ताकि वो प्रायर में रहे, पहला ही दिखे। इसके अलावा क्वेश्चंस टू में आपको अगर और कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे आप 10 क्वेश्चंस ही ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप मेक श्योर करें कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर है आपके तो इस पे नहीं आएंगे, राइट। अब जो हमने डिसाइड किया था कि गूगल फॉर्म भेजना है अलग से वापस से उनको, तो अगर आप अपने क्वेश्चंस को इस सीक्वेंस में रखते हो कि 10 क्वेश्चन के साथ आपका काम हो जाए, तो फिर आपको अलग से गूगल फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग जब मीटिंग शेड्यूल करेंगे उसी वक्त ये 10 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, तो आपको अलग से कोई यूआरएल या लिंक भेजने की नीड जो है वो नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड करें। एंड यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन डालिए, हाउ मच यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इफ यू गेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, रिक्वायर्ड कर दिया, और ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दे दिया, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया मैंने 5000 टू 10,000, फिर 10,000, 1 to 15,000, और फिर 15,000, 1 to 20,000, ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन ऐड करना चाहो कर सकते हो, नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, ताकि आपको पता चले कि वो पैसे ऐड करना चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद पेमेंट है, आप उसको अवॉइड करें। जो आपकी पेड अगर कैलेंडली ले रहे हो आप यहाँ पे, राइट, तो इसमें ये सारे जो फ्लोज हैं आप इसे ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है, अभी जो है वो ऑफ है, बट इसको मैं एडिट करके एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप 3 फ्लो जो है वो ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे टाइमिंग और ड्यूरेशन में सेट कर सकते हो कि कितने ड्यूरेशन पहले उनको जाए। अगर मेरी मीटिंग 3 बजे है, तो मैं 3 घंटे पहले, 6 घंटे पहले और 12 घंटे पहले ईमेल और एसएमएस जो है वो उसमें स्केड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये फ्री है, तो इसमें ये ऑप्शंस ऑफ हैं। और इसका अगर पेड वर्जन लोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो, और एंड सेम चेंज, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद इसका यूआरएल लो और इसको चेक करो कि हमने जो बनाया है सेटअप वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेटअप आते हैं इसको चेक करते हैं, टेस्ट फॉर कोचेस, और यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे देखिए मैंने 5 डेज दिया है, तो कल का कोई स्लॉट नहीं है। और अगर एक नेक्स्ट स्लॉट है भी, तो वो सिर्फ 8 बजे का है, क्योंकि सैटरडे का हमने एक ही स्लॉट रखा है, ठीक है। तो इसको शेड्यूल किया एंड गो फॉर नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं, और इसे ऐड कर लेते हैं, टेस्ट फोन नंबर 15,000 एंड शेड्यूल।
तो ये मेरा जो मीटिंग है वो शेड्यूल हो चुका है यहाँ पे, और अब देखते हैं आगे कि मेरे इसमें जो है मीटिंग आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो दिख रहा है मेरा मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 8 PM टू 8:45 PM। मुझे बस यहाँ पे आना है और स्टार्ट करना है। अब कोई कहता है कि मुझे जो लिंक है वो नहीं मिला है व्हाट्सएप पे या उस पे, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर क्लिक करो सिंपल, एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये जो क्लिक, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पे कॉपी इनविटेशन पे क्लिक करके ये जो मैसेज है इसको इतना पूरा कॉपी कर लो, और फिर आप उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे ओपन करके। ठीक है, और जब मीटिंग स्टार्ट करनी हो, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। और ये हो गया। अब यहाँ पे वापस जाते हैं, इवेंट जो हमने पूरा शेड्यूल कर दिया इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं, और आते हैं मीटिंग पे। ठीक है, तो मेरे जो फ्यूचर की मीटिंग्स हैं वो उसमें ये दिख जाएगा कि मेरा जो फ्यूचर में मीटिंग है आने वाला वो यहाँ पे है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा मीटिंग्स में, तो वो मुझे बता देगा कि क्या है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे ये है, फिर मतलब टेस्ट मैंने यहाँ पे डाला था, हाउ मच यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, तो यहाँ पे वो भी दिख रहे हैं, जूम का लोकेशन है, ज्वाइन मीटिंग है, और यहाँ पे अगर आप कुछ नोट ऐड करना चाहो उसके लिए, तो देन यू कैन ऐड हियर, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप इसको रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। देन अगर मुझे ये रिस्केड्यूल करना है तो आई कैन डू इट, बट वो मुझे मेरे एंड से करना होगा। अगर आप अपने एंड से नहीं करना हो चाहते हो, तो इसका जो यूआरएल है वो वापस से जो भी कोच है उस कोच को भेजो, जिस पर्सन का है उसको भेजो, एंड यू कैन आस्क देम कि आप वापस से इसको रिस्केड्यूल कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और प्रीवियस जितने भी मीटिंग है आपके, जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो जितने भी आपकी प्रीवियस मीटिंग है वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। आप इसको यहाँ से सफल करके चेक कर सकते हो। अवेलेबिलिटी स्लॉट भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि आपके कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से स्लॉट्स और मीटिंग्स जो है वो चल रहे हैं। राइट, तो ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है आपको ये कैलेंडली बनाने का। अब जब ये स्केड्यूलिंग पे आते हो तो आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करके आप जो भी अपना इंस्टाग्राम हैंडल है या जहाँ पे भी आप चाहते हो उस यूआरएल को वहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई वन ऑन वन स्केड्यूल करे, तो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है या नहीं है? ठीक है दिनेश जी, परफेक्ट। हाँ हिमांशु जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर वो एक छोटा सा कॉल था, ये तो कोई भी कभी भी शेड्यूल कर देगा ना, तो इसमें कोई अगर कभी भी पेड, नहीं करेगा, जो हमने दिया है उस पे करेगा, जो हमने नहीं जो जो टाइम हमने दी। टाइम स्लॉट अवेलेबल रखा है हम्म। उसमें वो कभी भी अपनी सेशन बुक कर सकता है। लेकिन अगर इसमें वो चाहे कि पेड करने के बाद ही करे तो वो भी कोई इसमें ऑप्शन होता है? आप अगर उसने पहले पे नहीं पेमेंट का किया है, रखो, रेजर पे बनाओ, और रेजर पे के बाद में ये लिंक अटैच कर दो कि पेमेंट करने के बाद वो कोई स्केड्यूल करे। अच्छा वो वहां से रेजर पे अटैच करना पड़ेगा जो नीचे ऑप्शन आ रहा था अदर नहीं, में? वहां पे नहीं, रेजर पे अलग है, वो तो उनका इनबिल्ड है, वो ऑप्शन मत यूज करिएगा। नहीं तो वो प्लेटफॉर्म अपना चार्ज भी जो है वो डिडक्ट करेगा उस पे। तो इट्स बेटर कि आप रेजर पे ही अपना एक पेमेंट गेटवे बनाए, रेजर पे या इंस्टा मोजो के ऊपर। तो वहां पे ऑप्शंस होता है कि पेमेंट करने के बाद आप उनको कहीं पे रिडायरेक्ट कराना चाहते हो वो करा सकते हो। नहीं सर मैं नहीं समझा, जैसे अभी आपने कैलेंडर का पूरा दिया हमको हम्म। ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि यहाँ से उसको वो अपना बुक करेगा हमारे साथ सेशन, हम्म। लेकिन यहीं से अगर उसको रिस्ट्रिक्ट करना हो कि नहीं पहले पेमेंट आएगी तब आपका सेशन अलाउ होगा, यहाँ से वो नहीं क्या होगा। पॉसिबिलिटी? नहीं, वो नहीं होगा, पहले पेमेंट करवाना होगा, फिर उसके बाद ही होगा वो। तो वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म रहता है, तो उसके ऊपर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो। मतलब वो फिर एक अलग ऐप है? हाँ, पेमेंट गेटवे अलग रहेगा उसका। मतलब वो रेजर पे में भी कैलेंडली होता है फिर? नहीं सर, रेजर पे में कैलेंडली नहीं होता है। रेजर पे है वो अलग है। रेजर पे में जब आप पेमेंट कैप्चर करते हो तो वो आपको एक वहाँ पे ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, कि जैसे ही कोई पेमेंट कर देना है तो पेमेंट के बाद आप क्या एक्शन चाहते हो, तो आप वहाँ पे उसे मेंशन, जो कैलेंडरली का लिंक है वो वहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, वो पेज सेटिंग में वो ऑप्शंस होता है, वहां से आप कर सकते हो, पेज रिडायरेक्शन के नाम से होता है वो। रेजर पे में?
रेजर पे में भी और इंस्टा मोजो में भी। ठीक है। ठीक है। वो जब आप करोगे एक बार पेमेंट गेटवे होगा तो वो क्लियरली समझ में आएगा। बट अगर जब तक पेमेंट नहीं है और आप ये चाह रहे हो। हाँ, ये तो फ्री क्लैरिटी सेशन के लिए ठीक है। हाँ, फ्री क्लैरिटी के लिए अभी ये सीधा ठीक है। हम्म, बट अगर आप ये चाहते हो कि कोई आपके साथ पहले पेमेंट करे तो आप उनसे डीएम करवा लो। डीएम में के बाद वो अगर वो पेमेंट करे और पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेजे उसके बाद आप ये लिंक भेज सकते हो उसे। हम्म। ये भी कर सकते हो। बट पहले कुछ सेशंस जो है वो फ्री में लेने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से इसे हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब नहीं, 49 ये पे करके आएगा तो आपको भी वो रहेगा कि इसने पे किया है वो रहा है। फ्री में सर आप अपने हिसाब से मजे से कर सकते हो सेशन। सर मेरा कंफ्यूजन सिर्फ सिंगल इतना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 11 तारीख को 8 बजे का एक स्लॉट फ्री बुक किया हुआ है जो यहाँ से ऑटोमेटिकली हो गया, और किसी ने मुझे 11 तारीख 8 बजे का पेड भी दिया हुआ है, तो वो तो दोनों क्लैश हो जाएंगे ना, नहीं होगे, कैसे होगे क्लैश? क्योंकि वो ये तो जो भी डायरेक्ट आया टाइम है। स्लॉट यहाँ पे स्केड्यूल होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, वो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा फिर। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको भी इसी के थ्रू बुक करवाएं, जो पेड वाला भी है। पेड वाला वो तो आपको इतना तो क्लैरिटी होगा ना सर, ये कि मेरे ये सेशन चल रहे तो मैं उसको दोबारा जाके कहीं और कमिट ना करूं। क्लियर है, ठीक है, क्लियर, मतलब अगर आप आप कह रहे हैं मैन्युअली कि सी दो चीजें होती है। इफ यू आर रनिंग एवरीथिंग ऑन ऑटोमेशन तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप किसी को मैन्युअली कमिट करके आते हैं तो फिर उसमें ऑटोमेशन कुछ नहीं कर सकता। क्लियर। राइट। अगर मैंने 3 बजे के टाइम स्लॉट रखा है, 2 बजे के टाइम स्लॉट रखे हैं, तो अब मैंने लिंक स्प्रेड कर दिया है तो आकर के जो लोगों ने आके करना था वो कर दिया। अब मैं यहाँ पे भी आपको बोल दूं हिमांशु जी कल 3 बजे कनेक्ट करते हैं तो दैट इज नॉट फेयर। तो आई मैं उसी को प्रेफर दूंगा जो सिस्टम के थ्रू आया है। हम्म। ठीक है, तो मैन्युअली किसी को कमिट नहीं कर देना है। अगर कमिट कर भी रहे हो तो चेक करो कि मेरा स्लॉट खाली है, अगर खाली है तो उसे ब्लॉक करो और फिर मैन्युअली दो। नहीं तो फिर वो दो दो तीन रूट ले लोगे फिर आप। हाँ, मतलब अल्टीमेटली क्लैंडी का हम लोग लिंक भेज दें, वो अपने हिसाब से बुक हाँ। करेगा तो वो स्लॉट बुक ही हो जाएगा, वो पेड हो या अनपेड हो। हाँ, कैलेंडली का भेज रहे हो तो वो बुक कर सकता है कोई भी। क्लियर है, ठीक है। क्लियर। तो जी। देख लेना, थैंक और यू। कैलेंडली का मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप ओपन करो ये सब करो फिर आप चेक कर सकते हो। बट जब आपके सेशंस होते हैं तो वो पता रहता है। ठीक है, मैं कभी भी, और इसको जितना स्मूथ रखोगे प्रोसेस को इतना इजी रहेगा। मैं कभी भी किसी को भी अगर मेरे साथ मीटिंग करनी होती है, मैं 2 बजे से पहले का टाइम देता ही नहीं हूँ, भले ही मैं मेरे पास काम कम हो। क्योंकि 2 बजे से पहले का मेरा जो रूटीन वर्क है उसका टाइम रहेगा और 2 बजे के बाद ही मैं टाइम दूंगा, तो मुझे पता रहेगा कि मैंने 2 बजे के बाद का ही टाइम देना है। और उसमें भी मैं वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे कभी टाइम नहीं दूंगा 2 से 7 के बीच में। पहले मैं चेक करूंगा क्योंकि मुझे पता है उन ये स्लॉट मेरा जो है वो स्केड्यूल्ड रहता है, ब्लॉक रहता है मेरा। राइट, तो फिर वो उतना सिस्टमेटिकली अपने को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। पूरा आप सिस्टम अलाइंड के हो। ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो। ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी। जी सुमा जी। सर अभी आप अमाउंट के रेंज अभी लिखे थे ना सर ऐप जी। में। हम्म। अगर अगर सपोज क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है सर, तो अभी वो ज्वाइन भी हो जाएंगे, फिर ज्वाइन होने के बाद उनको कैसे टैकल करना है वहां पे? जी, पहली चीज तो उसने जो वहां पे मेंशन किया है कि नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, इट्स नॉट 100%। ठीक है। हम्म, तो अब हालांकि यूजुअली तो ये होता है किसी ने, आप तो ये समझोगे इसको कि अगर किसी ने ये कहा है कि नो आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट तो इसका मतलब है कि वो पेमेंट नहीं करेगा करेगा। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ज्यादातर मैंने देखा है कि जितने भी मेरे कोचेज वन ऑन वन सेशंस लेते हैं उसमें जिन लोगों ने ये कहा है कि आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट उन्होंने वन शॉट में पूरा पेमेंट किया है। राइट, तो वो डिपेंड करता है कि आप उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो किस तरीके से सॉल्व करोगे, वो उसे क्लैरिटी दिलवा देते हो और उसे कॉन्फिडेंस देते हो कि नहीं तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, उसके बेसिस पे वो ठीक होता है वो डिसीजन। ओके। तो आई मीन ओके, बट कैसे मतलब, अगर सपोज मैं अभी आई एम ए फ्रेशर टू दिस फील्ड, हम्म। सो अगर आप जैसे बोले पहले तो फर्स्ट 20 30 से 20 सेशंस मैं फ्री में कर दूंगी, फिर
जब अगर बाद में अगर ऐसा सिचुएशन आया मेरे को, तो मैं कैसे हैंडल करूँ? नहीं मतलब क्या सिचुएशन आपको हैंडल करनी है? आई मीन ऐसे, जैसे कि अभी इंसान, आई मीन क्लाइंट आके अगर वो बस आके एक सेशन सुन के चला गया, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू पे। हाँ वो तो हमारे हाथ में है ना, फिर उसको हम क्लोज किस तरीके से करते हैं, उसके ऑब्जेक्शन है, उसको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो नहीं होगा ओके, क्लोज। तो वो तो हमें ओके, सेल्स करना ओके, है ना वहाँ पे। ओके, बेस्ड ऑन द कंटेंट। ओके, हाँ ओके, अगर कोई ओके, मेरे गॉट सामने इट। बैठा है ओके, तो वो मेरे हाथ में रहेगा ना कि मैं उसे किस तरीके से पिच करता हूँ और क्या सॉल्यूशन देता हूँ, उसके बेसिस पे होगा। इट्स ऑल अबाउट सेल्स। या, ठीक है। थैंक यू सर। जी। हाँ जी चित्रा जी। हेलो सर। जी। सर अभी जैसे आपने कैलेंडली में जो हमने 5 दिन का नेक्स्ट 5 डेज का स्लॉट बनाया, हम्म। उसमें हमें 12th का क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि जैसे आपने अभी लाइक पब्लिश नहीं किया, बट आपने बोला ना चेक कर लो ये लिंक हम्म। पहले, सेव करने से पहले। तो 13 का नहीं, एक ही दिखा रहा था क्योंकि हमने एक ही दिन का उसमें रखा था। हम्म। और तो 12th का क्यों नहीं अवेलेबल दिखा रहा? क्योंकि मैंने फ्राइडे वहां पे रखा नहीं था ना। पर नेक्स्ट फाइव 24 डेज घंटे रखा है। मैंने वो ब्लॉक भी डाला ना, 24 आवर्स। ओके। तो तो 24 घंटे पहले मेरे को पता होना चाहिए ना, अगर कोई इमीडिएट आके मेरे साथ स्लॉट शेड्यूल कर लेगा तो फिर मैं कोई और काम में लगा हुआ हूँ, मुझे वो छोड़ के वो करना पड़ेगा। और मैं अपना एक दिन प्रायर एडवांस में ही शेड्यूल करके रखना पसंद करूंगा। ओके। तो जैसे हम भी लाइक मूविंग फॉरवर्ड, ये तो अभी का हो गया, लेकिन जैसे आप मूविंग फॉरवर्ड हम ऐसे ही 5 डेज का रखते हैं, तो पर जो 13th को आएगा ऑफ कोर्स उसे 14 नहीं दिखेगा क्योंकि संडे है, उसे 15th का दिखेगा। हाँ और फिर जो अगर 15th को आया, उसने 16th का बुक करना है, तो वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा? 24 घंटे पहले नहीं कर पाएगा। इवन दो अगर अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है, और मेरा जो नेक्स्ट कल का स्लॉट है वो 8:30 बजे का मैंने दे रखा है, और वो साढ़े अभी 9 बजे चेकआउट करेगा, तो भी उसे वो स्लॉट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर का कोई भी स्लॉट अलाउ नहीं करेगा। ओके, गॉट इट। ठीक है। ठीक है। और 5 बजे से 5 दिन से ज़्यादा मैंने आगे इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर हमें दिक्कत हो जाएगी उसे याद कराने में कि आपने कोई सेशन रखा था या वो करने के लिए, है ना। ठीक है विजय, क्लियर है। तो जो सेशन में आना है ना, वो उसके लिए सेल्स ज़रूरी होता है। सेल्स इज़ द मास्टरी। क्योंकि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से टैकल करते हो, किस तरीके से उसको सॉल्यूशन करते हो, सॉल्यूशन देते हो, उसके बेसिस पे वो डिपेंड करेगा। राइट। और सुमा जी आपने जो पूछा कि किसी ने नो कहा है कि नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, तो उसके बाद उसको किस तरीके से टैकल करें, उसके बाद भी आप उसे भेज सकते हो, उसके बाद भी उससे कन्वर्ट करा सकते हो, उसकी अगर प्रॉब्लम है और उसको राइट सॉल्यूशन देते हो तो वो सॉल्व जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है। तो वो इस तरीके से काम करता है कि आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से आप उसे टैकल करते हो। जी चारू जी। So my question is other than the Calendly. I हम्म। just want to know like अभी 2 बारी एड्स रन किए बट द लीड जनरेशन इज वेरी मतलब अभी नहीं है एंड जो भी कमेंट्स आए हैं या जो भी क्वेरी है इट्स वेरी इररिलेवेंट एंड मतलब सब जब हम ये एड्स रन करते हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट हाउ हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अस टू फेस द रियल क्लाइंट मतलब कि हम रियल क्लाइंट्स हमें मिले या कस्टमर मिले या कितने टाइम के बाद थोड़ा एक्सपेक्टेशन ये होती है। अभी तो 2 एड्स रन किया आई डोंट नो रीच अच्छी थी मैंने उस पे देखा था उनके इनसाइट्स देखे थे इंप्रेशंस देखे थे वो ठीक था बट बहुत इररेलेवेंट थे जो कमेंट्स आए या वो आए मतलब इट डजंट हेल्प अस मतलब
मतलब कैसे रिस्पॉन्स, कैसे हम वेट करें उस चीज का, मतलब थोड़ा सा गाइडेंस इस चीज पे। जनरली रिस्पॉन्स कब फ्रूटफुल होता है या? सबसे पहले तो मैसेजिंग, ठीक है, हम्म। टारगेटिंग, ये हम्म। सही होनी चाहिए आपकी। अगर मैसेजिंग सही है, ऐड ग्राफिक्स रिलेवेंट है, हम्म। राइट, और मैसेजिंग सही है, तो फिर काम बन जाएगा। अगर आपको रिलेवेंट ऑडियंस नहीं आ रही, इसका मतलब आपने मैसेजिंग सही नहीं डाली है। मैसेजिंग को थोड़ा रिफाइन करो, थोड़ा और क्लियर करो, ओके। ठीक है। अगर आपने ऑल्टो की मैसेजिंग डाली है तो आपके पास ऑडी नहीं आएगी, नहीं, ठीक है सर। राइट। जी। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अब हम्म। कई बार क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमने लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज़ किए, राइट, तो अगर बेसिक इंग्लिश मैंने रखी है उसमें, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि जो क्राउड भी आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, बट थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा रिफाइन करके थोड़ा और अच्छे से स्मूथ रखा, तो वैसे भी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट करने वाली अलग अलग आएगी। और कब तक ये ठीक होगा, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, कैंपेन को 3 बार 4 बार टारगेटिंग स्विच करो, मैसेजिंग स्विच करके देखो, ये सारी चीज़ें करोगे तो मिनिमम जब आप नया ऐड शुरू करते हो तो 1.5 से 2 महीने में ठीक हो जाता है ये, ओके, ठीक है सर। ठीक है। मतलब इट्स अभी धीरे थोड़ा धीरे प्रोसेस, हाँ, एक्सपेरिमेंटल फेज है, दैट मीन्स। एक्सपेरिमेंट फेज रहता है क्योंकि आपका सब कुछ नया है ना, आपका ऐड अकाउंट नया है, पिक्सल जी। भी अगर है तो वो, सॉरी, हम्म। फेसबुक पेज नया है, ऐड हम्म। अकाउंट नया है, आप खुद भी जी। नए हो, जी। ठीक तो है। उसके लिए ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है ना। थैंक। जी, जी एकता जी। सर, जैसे आपने अभी चारू जी को बोला कि करीब 1 से 1.5 महीना लगता है, तो 1 से 1.5 महीने तक हम रोज व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक रोज 250 रुपीज या 300 रुपीज का एड अगर हमें मतलब चलाते रहना पड़ेगा? सी, इट्स नॉट अबाउट कि 1.5 महीना जो मैंने बोला है वो इसलिए नहीं है कि हम्म। वो 1.5 महीने बाद ही आपको क्वालिटी लीड मिलेगी, बट जो हम्म। अकाउंट है उसे स्टेबल होने में 1 से 1.5 महीना लगता अच्छा। है, उसका लर्निंग फेज इम्प्रूव होने में, राइट ऑडियंस तक रीच होने में 1 से 1.5 महीना लगता है। 1.5 महीने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो क्वालिटी लीड है वो 1.5 महीने बाद ही मिले, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि फिर आप, मैं 1.5 महीने बाद ही ऐड शुरू करूँ, तो वो जो जब से शुरू करोगे तब से 1.5 महीना, हाँ, ठीक है। नहीं, वही मेरा क्वेश्चन वही है कि अगर मैंने जैसे स्टार्ट किया 7 डेज के हाँ। लिए था, तो मुझे तो आए 50-60 फोन नंबर है मेरे पास। मैंने गूगल शीट हम्म। में एक्सपोर्ट करवा लिए थे हम्म। मेटा से। बट अगेन कोई भी काम का नहीं था, तो अगर इफ आई हैव स्पेंट माय मनी फॉर 1 वीक, डू आई कीप ऑन स्पेंडिंग माय मनी, लाइक न्यू एड सेट सब कुछ क्रिएट करके, न्यू फेसबुक पेज क्रिएट करके मैं 1-1.5 महीना और मनी स्पेंड करूँ, तब थोड़ा क्वालिटी लीड्स आना चालू हो गए? नहीं, आपको उसे वाइजली स्पेंड करना है, ठीक है, स्पेंड करना है। मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1.5 महीने तक 250-250 रुपये ऐड करते रहोगे और आपका ठीक हो जाएगा। उसे हम्म। लर्निंग देनी पड़ेगी, इट्स लाइक योर न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपने बेबी रख लिया तो वो मतलब ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, आप उसे करेक्ट करते हो ना, कहीं पे गलत है, कहीं पे सही नहीं है, तो व्हेन यू एड्स, जब वो खत्म हो जाता है, उसका स्टॉप हो जाता है, ऐड परफॉर्म नहीं दे रहा है, तो आप उसे बंद करते हो और नए सिरे से टारगेटिंग चेंज करके जब चलाते हो, ठीक है, तो आप कब ओके। तक चलाओगे उसे, आपको सही ऑडियंस मिल रही है। अब जब सही ऑडियंस मिलना बंद हो जाएगी तो आप क्या करोगे, बंद करोगे, तो मेटा को लगेगा कि ये सही नहीं आ रही, फिर जो सही आने लगेगी तो आप कंटिन्यूस चलाओगे। तो उस हम्म। ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में उस कैंपेन को आप कंटिन्यूस रन करके रखते हो, तो उससे मेटा समझता है कि नहीं, ऐसी ऑडियंस ही चाहिए, तो फिर वो धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करके राइट ऑडियंस को लेकर के आता है। एल्गोरिदम जिस हिसाब से काम करता है, अगर आप देखोगे एक दो स्टूडेंट आ गए हैं ना, तो फिर सारे ही स्टूडेंट आने लगेंगे, स्टूडेंट आएंगे। राइट। ओके। फिर अगर आप देखोगे कि हाउस वाइफ आ गई है, तो फिर सारी ही हाउस वाइफ आने लगेगी। अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर मेरे पास आप सबके प्योर बिहेवियर और इंटरेस्ट हो, तो अगर मेरा उसको फिल्टर करूंगा, तो आपके कुछ ना कुछ बिहेवियर और फिल्टर्स हैं वो सेम निकलेंगे, तब जाकर के आप यहाँ पे हो। हम्म। कुछ तो कॉमन होगा जो, जिसकी वजह से आप यहाँ, तो मेटा क्या करता है, आपके बिहेवियर जो रजिस्टर्ड करता है, उसके बिहेवियर को वो समझता है कि हाँ इसने रजिस्टर्ड किया, तो उसके जैसे और बंदों को वो ढूंढता है। तो पहले क्या करता है, पहले आपने जो टारगेटिंग दी है
वो उसको देखता है, फिर वो अपने एआई से भी चलाता है, तो उसमें रजिस्टर्ड किया, तो उसने देखा कि ये बंदा इस टाइप का बंदा है, वो रजिस्टर इंटरेस्टेड है, उसको ये ऐड पसंद आया। ठीक है। तो अब जो सिमिलर लोग होते हैं उसे सिमिलर चीजें पसंद आएगी, तो वो क्या करता है, अब वो मेरी टारगेटिंग के अलावा जो मेल फीमेल का होता है तो उसमें क्या करेगा, फिर वो मेल फीमेल नहीं देखेगा, उसमें देखेगा हाँ ये बिहेवियर सिमिलर है, इसे रेड कलर पसंद आया, तो और भी इसके जैसे और भी लोग, और भी तीन चार इंटरेस्ट को वो सिमिलर मैच करेगा और उसको दिखाएगा वो ऐड। फिर वैसे लोग रजिस्टर्ड करेंगे, तो फिर आप देखोगे कि एक सारे सेम इकट्ठे ही आ गए सारे। तो ऐसे वो काम करता है। ओके। हिमांशु जी ने बोला है कि 8 to 10 के इन्वेस्टमेंट लगेगा मिनिमम। नहीं, ये तो मतलब जितना आप लगाओगे वाइजली उसको स्पेंड करोगे, और फिर जो लीड आ रही है उसको क्लोजिंग करोगे अच्छे से। कैसे करोगे? हाँ, ओके। तो वो मैटर करेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो ओके। आपके पास आ रहा है और आप उसे किस तरीके से गाइड कर सकते हो। थैंक यू सर। है ना। तो सेल्स इज ऑलवेज अबाउट कि आपके पास वो बंदा आ रहा है, आप उसे किस तरीके से गाइड कर रहे हो, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, उसके बेसिस पे है वो। है ना। तो वैसे वो काम करता है सारी चीज़ें। ओके। ठीक है। और किसी को कोई सवाल नहीं है? तो मैं समझू कि कैन यू प्लीज, अच्छा ये क्या था? मतलब विजय, कौन से कैंपेन के ऊपर आपको इंसाइट्स चाहिए, कि हमने आपको बुलाने के लिए कौन से टारगेटिंग रन किए थे, वो वाले? उसके लिए हमने एक रन किया था, कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो बट आप मेरे को, हाँ अच्छा। उसके लिए हमने रन किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो इंटरेस्टेड हो वो। ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च किया हो वो लोग। फिर जो लोग लव एंड सेल्फ केयर में इंटरेस्टेड हो उस उनको टारगेट किया था। इनकम में जो इंटरेस्टेड हो उनको टारगेट किया था। तो ये सारी जो मिक्स कॉमन इंटरेस्टेड है उनको हमने टारगेट किया था उसमें। ओके सर। है ना। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्टोर था यूएस में या कहीं पे या इंडिया में, तो वहाँ पे एक लड़के को एक ओनर ने उसको रखा कि तू सेल कर, मैं देखता हूँ आज के दिन कि तू जितना सेल करेगा उसके बेसिस पे मैं तेरी सैलरी डिसाइड करूंगा। ठीक है। तो एक बंदा आया, उससे बात कर रहा था वो, जो सुपरवाइजर था वो बैठ के वो देख रहा था कि ये इसको कुछ तो बात कर रहा है, काफी टाइम से वो बात कर रहा है वहां पे, एक एक चीज ले जा करके उसको पकड़ा रहा है। तो वो बंदा आया था, तो पहले उसको न्यूज़पेपर दे रहा है वो, फिर उसके बाद चीजें अलग अलग दे रहा है। बोले ये बंदा आया था, तूने उसको ये इतनी सारी चीजें लेके गया? तो बोले ये क्यों आया था? तो बोले ये इतनी सारी चीजें लेकर के गया। बोले वो तो न्यूज़पेपर लेने आया था खाली। तो बट तूने तो बोले जो फिशिंग का है वो बेचा तूने उसको, शूज का कवर भी तूने उसे बेचा, एक चेयर भी तूने बेच दी, तो ये सारी। तो बोले हाँ वो न्यूज़पेपर लेने आया था, तो मैंने उसको पूछा कि क्या करोगे, बोले नदी किनारे जाकर के न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के क्या करोगे, ये लो मछली का कांटा भी लेते जाओ, बैठ के थोड़ी देर वो लगा देना तो मछली भी आएगी। फिर बोले, मैंने उसके शूज देखे, तो मैंने बोला कि वहां पे तो कीचड़ होगा नदी के आसपास, और तुम्हारे शूज तो काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो मैंने उसको बोले शूज के कवर भी बेच दिए। तो बोले कि सिर्फ वहां पे जाकर के मछली ही पकड़ोगे या फिर कुछ खुद भी खाओगे? तो उसको कुछ पैकेट्स भी पकड़ा दिए खाने पीने के। तो ऐसे करके उसने उसको $100 का सारा सामान बेच दिया। तो बोले सिर्फ न्यूज़पेपर लेने आया था, तूने उसको सारे इतने सारा सामान पकड़ा दिया? वो सिर्फ न्यूज़पेपर लेने आया था, तो उसको मछली का कांटा भी पकड़ा दिया, चेयर भी पकड़ा दिए, शूज के कवर भी पकड़ा दिए, और वहां पे कुछ
नाश्ता भी उसको पकड़ा दिया कि ये भी लेते जाइए सर। ठीक है। तो इट्स अबाउट हाउ यू सेल। वो तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही लेने आया था, उसको और न्यूज़पेपर आता है एक आध डॉलर का, उसने 100 रुपए का उसको चिप दिया सारा। ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। आपके पास अच्छा कंटेंट होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे क्या बेच रहे हो वो भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो फिर एंड करें आज का सेशन। चलिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक कल होगा हमारा नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम Q&A रखेंगे। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो लेकर के आप आ सकते हैं। 30 मिनट या 45 मिनट्स का होगा। दूसरा, कीर्तन आपके साथ एक लीड पेजेस का वीडियो शेयर करेगा, तो वो वीडियो देख के आना। कि वो वीडियो उसमें मैंने सिखाया कि आप लीड पेजेस किस तरीके से बना सकते हो। वो सारी चीज़ें उस पर मैंने वहाँ पे दे रखी है, तो उसको आप करके आएंगे तो आपके अगर वहाँ पे भी डाउट होंगे तो वो कवर करेंगे। ठीक है। बाकी एड रन करने के और उसके उसके जितने भी आपके सवाल हैं, यू कैन लेके आइएगा सारे। ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अटेंडेंस मेरे पास नहीं आई है, बट आपने जो रजिस्टर्ड किया है वो मेरे पास आ गया है, तो विल कंसिडर दैट।